Good morning, everyone. सुप्रभात सभी को। Welcome to the course on prayer and intercession. और आप सबका स्वागत करते हैं प्रार्थना और मध्यस्थी में। We welcome you all online, those who have joined as well. और जितने लोग ऑनलाइन में ज्वाइन किए उनका भी हम स्वागत करते हैं। So today is a new day. आज एक नया दिन है हमारे लिए। Let us eagerly expect from the Lord what He has for us today. और हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करने के लिए हम बड़े हिम्मत के साथ और धैर्य के साथ बैठे हैं। Every day is new grace, fresh anointing. हर एक दिन एक नया अनुग्रह है और एक नया अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you, Lord. Father, we praise you, we worship you, Lord God. Thank you for your presence here in our midst, Father. Father, thank you for leading us thus far, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you for being with us, Lord God. Thank you for protecting each and every one of us, oh God. Thank you for teaching us, oh God. Thank you, Lord, that you have brought us, Father. Enable us, oh God, to learn whatever that you have for us, oh God. Help us to obey, Lord God. Help us to surrender to your word, Lord God. Hear your voice, Father, which is so precious to us, Father God. Speak to us, Lord God. Father, even as we begin the session today, Father, we pray for your anointing over each of our lives, Father God. Strengthen us, oh God. Speak to us. In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. Amen. So, yesterday we saw prophetic prayer. कल के दिन हमने भविष्यवात्मक प्रार्थना के बारे में हमने देखा। How many of us have the habit of going back and reviewing your notes? कितने लोग कल अपने जो नोट्स बताए विषय पर पढ़े थे उसको आपने जाकर दोहराए या देखे? Yeah, I can see few hands. केवल That's कुछ हाथों great. को मैं देख रही हूँ। Yeah, I would encourage each of us, whenever you have time, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जो विषय पढ़ाया जाता है उसको ध्यान करें। take the Bible and take the notes. आप अपने बाइबल को ले और जो पुस्तकों को, जो आपके विषय पुस्तकों को लेकर आप ध्यान करें। And the Lord will speak to you personally. परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। Okay. So today we are in lesson number 10, आज हम 10वां अध्याय को हम देखेंगे, persistence in prayer. प्रार्थना में दृढ़ता। So we've already seen a lot about persistence in prayer. हम बहुत सी बातों को हम देखते हैं जो प्रार्थना में किस प्रकार दृढ़ता को पाते हैं। So today we are going to focus, why should there be persistence in prayer? हम आज इस पर देखेंगे कि प्रार्थना में दृढ़ता क्यों होना चाहिए। So there are few reasons why we should persevere or be persistent in prayer. कुछ कारण है जिसमें हम प्रार्थना में दृढ़ता पूर्वक बन सकते हैं। So if we see the first reference, Luke chapter 11 verses 5 to 8. अगर हम बाइबल में 11 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय So 5 से 8 में देख सकते हैं। So it talks about a man who's going and asking food to his friend at midnight. और वहां पर हम देखते हैं कि जब एक भाई अपने मित्र के घर जाकर अर्धरात्रि में वो भोजन को मांग रहा है। So for the sake of another friend who has come to his house and he doesn't have food to serve him. और उसके पास ऐसा भोजन नहीं था कि वो उसको भोजन देकर सेवा कर सके। So because it's midnight, this person might be sleeping. और ये अर्धरात्रि होने के कारण वो सो रहा है। But the friend keeps asking for the bread. लेकिन वो विनती कर रहा है उस भाई से उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। So the Bible says, not because he's his friend he will give the bread, but because he's persistently asking him. और वहां पर मित्र होने के नाते उससे मित्र होने के नाते वो कह नहीं रहा, बल्कि वो दृढ़ता पूर्वक उससे मांग रहा है। Because he kept on asking, he receives. और परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है, अगर हम मांगते हैं हम उसे प्राप्त करते हैं। So similarly it is with our heavenly Father. इसी प्रकार हम परमेश्वर से मांगने की बातें।
So we saw yesterday about a widow who goes and knocks at the door of an unjust judge for justice. और हम देखते हैं कि वो एक विधवा और अपने न्याय के लिए वो जाकर द्वार को खटखटाती है। So he's an unjust man, और वो व्यक्ति जो अन्याय का काम वो करने वाला, but because this widow kept on going and asking, लेकिन जब वो विधवा स्त्री वहां जाकर उसे मांगती है, he granted her justice. और वो न्याय का काम करता है। So we have to continue asking God, seeking God, persevering with God, expectantly knowing for sure that we will receive. हमें परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना में दृढ़ रहने के लिए लगातार याचना करना है और उसकी ओर ताकने की आवश्यकता है। So can we read Ephesians chapter 6 verse 18 please? हम इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 18 पद। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 पद। Amen. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। So it says praying always with all prayer and supplication in the spirit. हम हर समय हर प्रकार से हमें प्रार्थना आत्मा में होकर प्रार्थना करना है और परमेश्वर के सम्मुख हमें रखना है उन विनतियों को। Being watchful to this end. और हम देखते हैं इस अंतिम समयों में with all perseverance. हम परमेश्वर से दृढ़ता से मांगना है। So the Bible clearly stresses us that we should persevere. परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दृढ़ बने रहना, लगातार तत्पर रहना और उससे प्रार्थना करना। So perseverance always takes time. और दृढ़ता में बने रहने के लिए हमें समय लगता है। So that is always, if you see the next verse, Colossians 4:2, it says, continue earnestly in prayer. अगर कुलिस्सी की पत्री उसका 4 अध्याय 2 पद में हम देखते हैं लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो, being vigilant in it with thanksgiving. और लिखा है कि धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। Yesterday we saw about speaking in tongues, praying in the spirit. हमने कल के दिन देखा था आत्मा में होकर प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा की भरपूरी में अन्य भाषा में होकर प्रार्थना करना। So when we pray in the spirit, it keeps our spirit alert. और जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मा सतर्क हो जाती है, जागरूक हो जाती है। See, it alerts us when to pray, हम कब प्रार्थना करते हैं, how to pray, कैसे हम प्रार्थना करते हैं, and how long to pray कितना लंबे समय तक हम प्रार्थना करते हैं without giving up. बिना छोड़े। So there are 3 main reasons why we should persevere in prayer. और यहाँ पर हम देखते हैं 3 कारण को हम देखने पाते हैं प्रार्थना में, किस प्रकार परिस्थितियों में हम दृढ़ता पूर्वक प्रार्थना कर सकते हैं। First is the timing of God. सबसे पहले हम परमेश्वर का समय। So if it is the timing of God that's perfect, अगर हमारा समय एकदम स्पष्ट हो रहेगा तो, so we should not miss that timing. और हम अगर अपने समय को ना खोएंगे तो, So we should be alert in prayer. तो हम अब प्रार्थना में जागरूक बन सकते हैं। So at that time it will be fulfilled. और उस समय हमारे जीवन में हम पूर्णता को देखने पाते हैं। So sometimes we have to persevere because of demonic interception. और कई बार अगर हमें प्रार्थना में दृढ़ होना है उसके लिए ताकि हम दुष्ट आत्मा को हम रोक सके। So the evil one always, the Bible says, comes to steal, kill and destroy the purposes of God. और जो शैतान का जो कार्य है वो हमेशा यही चाहता है कि हमें खत्म करे, हमें मार दे और हमें उस परमेश्वर के साथ से अलग कर दे। Whatever that the Lord has for us, परमेश्वर के पास जो कुछ है उस जो चाहता है हमारे लिए, the evil one always wants to destroy. और शैतान की शक्तियां हमेशा क्या करते तैयार रहती है कि उसे किस प्रकार हम खत्म करें।
we see in the life of Daniel how he kept persistently praying. हम दानियल के जीवन में देखते हैं किस प्रकार उसने दृढ़ता पूर्वक प्रार्थना को किया। So he knew, he could understand from the prophecy of Jeremiah, the time has come. जब यिर्मयाह का यिर्मयाह का जब समय आया उसके जीवन के अंदर For the children of Israel. परमेश्वर के लोग जो इसराइलों के लिए, So he started praying, और उसने प्रार्थना करना प्रारंभ किया। but there was demonic interception. लेकिन वहां पर देखते हैं शैतानी शक्तियां के द्वारा रुकावट को। Even though he received the answer he was supposed to receive the answer on the first day, पहले दिन दानियल को प्रार्थना का उत्तर मिल ही गया था। it was heard, Daniel's prayer was heard. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था। The Bible says the Lord hears when we pray. जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। So for him to receive it almost took 21 days. और लगभग उस उत्तर को प्राप्त करने के लिए 21 दिन लग गया। So we should persistently pray. तो हमें क्या करना है? दृढ़ता पूर्वक प्रार्थना करना चाहिए। And the other thing is completing all obedience. तो हाँ, तीसरी बात जो कारण है दृढ़ता पूर्वक प्रार्थना में लगे रहने के लिए, सारी आज्ञाओं को पूरा करना होगा। So there might be certain areas in our life that the Lord wants to deal with. हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर परमेश्वर चाहता है उसके साथ हम कार्य करें। So we might not have surrendered those areas to the Lord. और ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर हम परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के लिए हम समर्पित कर सकते हैं। But the Lord never interferes in our free will. और परमेश्वर कभी भी हमारे उसमें दाखिल नहीं होता जो हमें स्वतंत्र इच्छा को दिया है। He knows we know the truth. वो सत्य को जानता है। He wants us to choose the right thing of our own choice. और वो हमें आग्रह करता है कि हम सही चीज का चुनाव हमारे जीवन में कर सके। So free will is given to us by God in But- His love for us. परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र चुनाव दिया है ताकि हम उससे प्रेम कर सके। So here we see of an experience of a woman who has been praying for the salvation of someone in her family. और यहाँ पर एक महिला के जीवन का अनुभव को देख सकते हैं जो एक व्यक्ति के उद्धार को पाने के लिए प्रार्थना करती है। So she was praying for almost 20 years और लगभग वो 20 साल तक वो बहन प्रार्थना करती है। and she couldn't see the result. उसको कोई भी फल नहीं मिलता या उत्तर नहीं मिलता। So one day the Lord was teaching her personally. और एक दिन परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर से उस बहन को जो प्रार्थना कर रही थी उसको सिखाया। And she understood that she had some hardness of heart that she has to deal with. और उसके हृदय में कुछ ऐसा कठोरपन पाया जाता था जिसको उसके साथ कुछ बदलाव को करना था। So she asked the Lord for forgiveness. तो उस स्त्री ने हृदय में कठोरता जो थी उसको दूर करने के लिए परमेश्वर से अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना की। So and later she again started praying. और जब उसने पश्चाताप किया और आखिरी में हम देखते हैं उसके जीवन के अंदर, And she could see the difference in their lives. और उसने उन लोग के जीवन के अंदर एक बदलाव को देखा। So sometimes there might be some hindrance within us कई बार हमारे अंदर ही ऐसे रुकावट होती है जो प्रार्थना का उत्तर पाने में रोकती है। that we might not know. हमें मालूम नहीं पड़ता है। So when we seek the Lord जब persistently in prayer, जब हम दृढ़ता पूर्वक परमेश्वर से प्रार्थना करके जब हम मांगते हैं, He knows the answer that we are expecting. और वो उस परमेश्वर को मालूम है कि हमें उत्तर मिल रहा है या हम प्राप्त कर रहे हैं। He wants to give us the answer, वो उत्तर देना तो चाहता है, but we can only receive it His way. लेकिन हम उसके अनुसार हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। So only when we personally have a connect with God, obey Him, surrender to Him, only then we can see the answers that we are expecting. जब हम व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम परमेश्वर की ओर से उन उत्तरों को
हम पाते हैं, रुकावटें दूर होती हैं। There was once a time in my life, मेरे जीवन में एक दिन so always I used to see others. मैं हमेशा दूसरों को देखती थी। Father, they are not reading the Bible, they are not praying, but they seem to be so happy in life. और मैं देखती थी कि उन लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं और उनके हर जीवन को मैं अलग तरीके से मैं देखती थी। So I'm reading your Bible, meditating on your word, I'm praying, but always you tell me like I have to change more, I have to yield more, I have to surrender more. और हमेशा मैं उसको देखती हूँ कि मुझे रोज बाइबल पढ़ना है और मुझे समर्पित करना है और रोज मुझे अपने श्वास को बरकरार रखना है। तो इस प्रकार की बातें मुझे स्मरण दिलाती रहती है। They were free to do whatever they want. जो वो लोग चाहते हैं वो सब कुछ करते हैं। And I used to observe that. मैं हमेशा उनको देखती रहती थी। But when it's me, the लेकिन- Lord will convict me. लेकिन मैंने अपने आप में देखा, परमेश्वर ने मुझे उस बात को स्मरण दिलाया। So I have to apologize. तो मैंने उस बातों को स्मरण जो दिलाया गया उससे मैंने माफी को मांगी। If it's with the Lord, I keep confessing. और जब मैं लगातार परमेश्वर के समीप प्रायश्चित करती रही, I was growing in the Lord. मैं परमेश्वर में बढ़ती गई। Then I understood that Christian life is all about Jesus. और मैंने इस बात का अनुभव किया कि हमारा लगातार का जीवन मसीह में है। It's not my business to see how the other person is walking. मेरा कोई धंधा नहीं है कि मैं दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। Each of us have a track. और हम प्रत्येक के पास एक सामने हमारा रास्ता है। Each of us have a load to carry. और वो हर प्रत्येक के पास उसको लेके चलने की क्षमता भी है। And it's so different from others. लेकिन हम दूसरों से अलग हटकर है। So, but because even though I had this question, I was continuing in the Lord. जब मैंने अपने जीवन में देखा कि मैं लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हुए, So one day I could see the deep insight, conviction, transformation that only the Lord can give. देख मैं उस बात को महसूस की कि मेरे अंदर पश्चातापी हृदय बदलाव को, परिवर्तन को मैं देखते हुए और बढ़ते हुए जा रही हूँ, देख रही मैं अपने आप में। So from that day onwards, I know it's Jesus and me. उस दिन मैं समझ गई कि मैं और मेरा मसीह। So I used to always write and keep Jesus and me, we are always victorious. और मैं उस बात को मैं हमेशा लिखती हूँ कि मैं और यीशु मसीह हमेशा विजय को प्राप्त करते हैं। Can we all tell Jesus and me, we are victorious? और आप लोग क्या कह सकते हैं? यीशु और मैं विजय को प्राप्त करने वाले। We are a wonderful team, right? हम एक बहुत अच्छे एक समूह में पाए जाने वाले लोग हैं। So let us always focus on Jesus. And if Jesus tells something, that is the word for us. हमेशा हम प्रभु यीशु की ओर देखते रहे कि वो परमेश्वर का वो स्वयं वचन है जो हमें देता है। But remember, Jesus will never tell anything outside his word. लेकिन एक बात याद रखना कि यीशु मसीह कभी संसार की बाहर की बातों को हमारे अंदर नहीं देता है। Okay, let's see about Elijah. अब हम देखेंगे एलिया के जीवन से। So we already saw a little bit about Elijah. हमने एलिया के बारे में कुछ बातों को हमने सीखा है। So in 1 Kings chapter 17, we see that. और हम पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 1 और 2 पद में हम देखते हैं। So when the word of the Lord came to Elijah. जब परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया। So previously for almost 3 years, the land did not see rain. और हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से उस धरती पर या उस स्थान में बारिश नहीं हो रही थी। But God's word is coming to Elijah. लेकिन जब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा, And he goes to King Ahab. और वो राजा आहाब के पास गया। And he tells him, I hear the sound of abundance of rain. और मैं इस बात को मैं एहसास कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ी बारिश वर्षा होने वाली है। Then Elijah said that to King Ahab. और एलिया ने आहाब से कहा, The land was dry. लेकिन यहाँ पर अभी धरती जो है, देश जो है सूखा पड़ा हुआ है। But he heard the Lord, लेकिन उसने परमेश्वर की ओर से सुना, believed in his word, उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, and he went and said the king. और वो राजा के पास गया।
So when he told the king what, जब उसने राजा से उन बातों को कहा so he asked the king to go and feast and enjoy. और उस राजा ने कहा कि ठीक है तुम भोजन लो और अपने आप में आनंदित हो, But Elijah went back to pray. लेकिन एलिया ने क्या किया, वो प्रार्थना के लिए वापस उस स्थान में गया। So he persevered in prayer. We read of this in First Kings and also in the book of James. और हम जब राजा की पुस्तक और याकूब की पत्री में हम उस बात को पढ़ते हैं कि एलिया दृढ़ता पूर्वक उसने प्रार्थना किया। So Elijah prayed persevering with God. और देखते हैं एलिया परमेश्वर के साथ दृढ़ता से प्रार्थना को किया। So because he was partnering with God, he just held on to God's word and he was praying. वो परमेश्वर के वचन को पकड़े रहा क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक सहकर्मी के रूप में बुलाया गया। And we also see he was so expectant of the result. और हम देखते हैं कि उसने उस प्रार्थना का प्रत्युत्तर प्राप्त किया। So how do we know that? हम कैसे जान सकते हैं? So he's sending his servant almost 7 times to see if there is any cloud that shows if the rain. और वो हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वो 7 बार अपने सेवक को भेजता है कि देखो कि कहीं वहां पर पानी का कुछ उपाय हो रहा है कि नहीं। देखता है वहां कुछ ना कुछ देख कर आता है। Each time the servant comes back saying that there is no rain. और हमेशा उसका जब भी वो जाता है सेवक कहता है कि वहां पर कोई बारिश नहीं होगी। So the 7th time the servant says he can see a cloud और as small as the size of a hand. 7वीं बार वो सेवक जाकर देखता कि एक छोटा सा बादल का रूप वहां से दिखाई देता है। So how do we know that Elijah persevered? हम कैसे हम देखते हैं कि एलिया दृढ़ता पूर्वक उस बात को कह रहा है प्रार्थना के द्वारा। Can we read James 5:16 to 20? याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16 से 20 पद को हम देखेंगे। Confess your trespasses to one another इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने and pray for one another अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो that you may be healed. जिससे चंगे हो जाओ। The effective fervent prayer of a righteous man धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से avails much. बहुत कुछ हो सकता है। Elijah was a man एलिया भी तो हमारे समान with a nature like ours, दुख सुख भोगी मनुष्य था and he prayed earnestly. और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। So can we all repeat? Elijah was a man बोलिए एलिया भी तो हमारे समान with a सुख- nature like us, दुख सुख भोगी मनुष्य था। and he prayed उसने प्रार्थना किया earnestly. गिड़गिड़ाकर। So first let us hear in Hindi and then in English. ओके, पहले हम हिंदी में एक साथ बोलेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश में। Shall we say loudly? हम Shall we ऊंची speak to ourselves boldly? हम बड़े धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ और ऊंची आवाज में हम इसको कहेंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। Elijah was a man with a nature like us, and he prayed earnestly. So, shall we repeat? So, I will pray earnestly. I will trust God with the result. How many of us know and are being convinced? See, even as we are in the presence of the Lord almost more than a week, God has been speaking to us. हम अभी लगातार 1 हफ्ते से यहाँ पर है। हमने क्या इस बात को महसूस किया, हमने जाना कि वो वचन जो मेरे अंदर आकर बदलाव को लेके आ रहा है। How many of us believe that it's a privilege for us to be here in His presence? और कितने लोग इस बात को एहसास करते हैं कि मुझे ये मौका मिला है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, Know the truth सत्य को जानने के लिए,
and the truth that sets us free और जो सत्य स्वतंत्र करता है and follow it wholeheartedly. ताकि हम उस काम को पूरा कर सके। It is such a joyous time that the Lord has given us. और ये बहुत ही अति सुंदर परमेश्वर ने समय को हमें दिया कि उसकी उपस्थिति में हम व्यतीत कर सके। So every word in the Bible is true. हर एक जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य है। So if God heard the prayers of Elijah, जब एलिया की प्रार्थना को परमेश्वर सुन सकता है and after more than 3 years, if the land could rain, और वहां पर देखते हैं 3 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि वहां पर जो जिस देश में बारिश नहीं हो रही थी परमेश्वर ने उस कार्य को किया। so when we pray, the Lord will listen. और अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब प्रार्थना करते हैं, It says it did not rain on the land for 3 years and 6 months. और उस धरती पर हम देखते हैं उस देश में 3 वर्ष लगभग वहां पर बारिश नहीं हुई। And he prayed again, 3.5 वर्ष बारिश नहीं, और उसने प्रार्थना शुरू किया and the heaven gave rain, और स्वर्ग से आकाश खुल गया और वहां पर बारिश हुई and the earth produced its fruit. और हम देखते हैं कि वहां पर भूमि वो जमीन फलवंत हुई। So we are also called to pray for one another. और इसलिए हमें क्या करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बुलाता है। We also saw that Elijah prayed for the nation of Israel. और हम देखते हैं कि एलिया ने इस्राएल के देश के लिए प्रार्थना किया। So these are the reasons why we have to persevere in prayer. इस क्यों हमें दृढ़ता पूर्वक प्रार्थना करना चाहिए। So always we have to check from within, is there something that I have to change, Lord? और हमें अपने आप में देखना है कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसका मुझे बदलाव करना है, परिवर्तन करना है। And always wait for the Lord's timing और हम परमेश्वर के समय का इंतजार करें and stand against the evil one, और दुष्टात्मा की रोकने वाली ताकत के विरोध में हम खड़े हो God's word and prayer. और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें और हम प्रार्थना करें। So the next lesson we are going to read is about intercessory prayer. हम अगला जो 11वां अध्याय को हम सीखेंगे वह है मध्यस्थी की प्रार्थना। So intercession is nothing but going to God on behalf of someone else. और यहाँ पर हम देखते हैं मध्यस्थी प्रार्थना जो है मात्र किसी और की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर के निकट जाना है। So we see that Jesus is our intercessor. और देखते हैं यीशु हमारा एक मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। In Isaiah 53 verse 12 we read, और यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 12 पद में हम जब पढ़ते हैं, he bore the sin of many उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया and made intercession for the transgressors. और अपराधियों के लिए विनती करता है। So the word bore in English, in Hebrew it means nasa. और हम जब इब्रानी भाषा जो नाता शब्द को हम देखते हैं, To lift or carry away the burden. उसका अर्थ है उठाना, बोझ ले चलना। So we see that Jesus carried us. He carried our burdens on the cross. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे बोझ को उठाकर क्रूस पर चला। So the intercession what Jesus did for us is not only a prayer, और मध्यस्थी की जो प्रार्थना यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया वो जो, but it is the work that he completed for us on the cross. लेकिन उसने उस काम को क्रूस पर पूर्ण किया। Jesus took all our sins on the cross and because of which we are free today. और क्रूस पर उसकी मध्यस्थता जो एक प्रार्थना नहीं थी बल्कि उसने उस कार्य को उसके द्वारा हमारे बोझ को उठाकर पूरा किया। So he met with God on our behalf. वो परमेश्वर से मिला हमारे बदले में। So whatever sins that we have committed, जो कोई पाप हम करते हैं, because Jesus went to the cross, यीशु मसीह क्रूस पे जाने के द्वारा, so we are sitting here freely without sin. और आज हम बिना पाप से छुटकारा पाकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। So Jesus willingly went to the cross. और पर यीशु मसीह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो क्रूस पर गया। Thinking of you and me. उसने मेरे और आपके बारे में सोचने के द्वारा,
So he knew each of us. वो मुझे और आपको अच्छी रीति से जानता है। And the Bible says Christ died for us while we were sinners. और वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। He was sinless, वो उसमें कोई पाप नहीं था, but he just went to the cross because you and I should live. मेरे और आपके कारण मुझे अच्छा जीवन देने के लिए, जीने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ। So he took all the suffering and pain on himself, उसने अपने ऊपर हमारे बोझ को उसने अपने ऊपर लिया, so we could have the freedom in Christ. ताकि हम मसीह में स्वतंत्र हो जाए, आजादी को प्राप्त करें। So because we have freedom in Christ, जब हम मसीह में आजादी को प्राप्त करते हैं, we are able to learn from the Bible. हम योग्य होते हैं परमेश्वर के वचन को सीखने We are के लिए, able to grow in the Lord. मसीह में बढ़ने के लिए, So we are able to live as his children. और हम मसीह के बच्चे बनकर जीने के लिए। We are the children of light. मैं और आप ज्योति के संतान हैं, All that we receive is because of grace, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। because of the work of intercession what Jesus did for us. कारण क्या है कि मसीह यीशु ने हमारे लिए मध्यस्थ होकर कार्य किया। So even we saw that when Jesus was here on earth, जब यीशु मसीह इस धरती पे था, primarily he was focused on praying and seeking the Father's will. और वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना के द्वारा वो प्राप्त करता था। So if Jesus himself prayed to the Lord, जब यीशु मसीह स्वयं जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, how much more we should pray. तो हमें कितना प्रार्थना, जिस प्रकार यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ प्रार्थना समय को व्यतीत किया, हमें कितना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करना चाहिए। If we follow Jesus in prayer, जब हम मसीह यीशु की प्रार्थना में शामिल होते हैं, we will never experience failure in our life. और हम अपने जीवन में कभी भी असफल व्यक्ति बन नहीं सकते। So how many of us believe that we can pray like Jesus? हम कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं मसीह यीशु के समान प्रार्थना कर सकता हूं? Jesus always followed a pattern and he always practiced what he taught. यीशु मसीह हमेशा वो एक नियम का पालन करता था, उसके पास तरीका था करने के लिए, उस तरीके के अनुसार वो करता था। So we are called to follow Jesus in every way. जब हमें क्या करना है, हमें भी यीशु के बताए हुए पद चिन्हों पर, रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। So also to intercede for others. जब हम दूसरों के लिए मध्यस्थ बनते या मध्यस्थता करते हैं, Jesus is our example. यीशु हमारा एक अच्छा उदाहरण है। So Jesus suffered so that you and I can live. और यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया ताकि मैं और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। So when we intercede for others, we might have to do some sacrifices. तो जब हम दूसरे व्यक्तियों के लिए मध्यस्थ बनते, दूसरे के बोझ उठाते हैं, तो हमें उन बातों के लिए बलिदान करना आवश्यक है। Not to the extent of what Jesus did, because he's completed everything on the cross. यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया जो क्रूस पर था, हमें उस प्रकार नहीं, We just partner with him, लेकिन हम उसके साथ एक सहकर्मी है, being a channel of his blessing, हम उसके जो आशीष के स्रोत हैं, हम positioning ourselves, praying for others. और हमें क्या करना है, दृढ़ता पूर्वक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। So our hands and heart is lifted up to Jesus, जब हमारे हाथ और हृदय यीशु की ओर उठते हैं, and we bring all the burdens, whatever that the Lord is putting within us for others, to the Lord. और जो सारा बोझ जो दूसरों के प्रति हमारे अंदर दिया है, और वो परमेश्वर के पास जब लाते हैं, The work of the cross is already finished. और हम देखते हैं क्रूस पर वो कार्य पूरा हो चुका है। We are just presenting others' burdens हम to the Lord. हम दूसरों के बोझ को हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने सम्मुख लेके आ रहे हैं। So we stand against every evil attack of the enemy. और हमें क्या करना है, हर एक दुष्ट आत्मा की जो ताकत जो रोकती है, उसके विरुद्ध में हमें खड़े होने की आवश्यकता है। Against that person or the nation. देश के लिए और हमारे उस मित्र के लिए, दूसरों के लिए, For whomever that we are praying for. हम जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
So this is such a privilege that God hears our prayer. और ये बहुत ही हम सौभाग्यशाली है कि ऐसे इस तरीके से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। So we saw that we follow Jesus as our example in intercession. और हम देखते हैं मध्यस्थता प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक उदाहरण था हमारे लिए कि किस प्रकार से मध्यस्थ होकर प्रार्थना करना है। Jesus also does the work of intercession seated at the right hand of the Father. और हम देखते हैं कि आज भी प्रभु यीशु मसीह पिता के दाईं ओर बैठकर वो हमारे लिए मध्यस्थ बनकर बैठा हुआ मध्यस्थता कर रहा है। Because he has shed his blood for us, क्योंकि उसने हमारे लिए कीमती लहू को बहा दिया, there is nothing or no one to condemn us. ताकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में प्रायश्चित कर सके, बदल सके। Can we read Romans 8 verse 34? कोई हम बढ़ सकते हैं रोमी की पत्री 8 अध्याय 34 पर। Thank you. Anyone in English, please? Amen. Thank you. So we see that he is pleading our cause to the Father. और हम देखते हैं यीशु मसीह पिता की उपस्थिति में वो बिचवाई करते हुए देखते, मध्यस्थ करते हुए देखते हैं हमारे उस कार्य को पूरा, हमारे लिए वो कार्य पूरा करने के लिए। So how will it be when Jesus is taking our cause to the Father? Just imagine. आप थोड़ा सोचे किस प्रकार यीशु मसीह हमारे उस बोझ को पिता के सामने लेके जा रहा है या रख रहा है। So every time he'll tell, I have died and shed my blood for Jackin. Okay. और यीशु मसीह इस बात को वहां पर बता रहा है कि किस प्रकार मैंने प्रत्येक लोग के लिए अपने कीमती लहू को चढ़ाया है, भेंट किया है उस क्रूस पर। So each time, that is how he'll present our cause to the Father. और हम देखते हैं ऐसे जिसने जो दाम चुकाया वो हमेशा परमेश्वर के पिता के पास आकर वो कहता है। And when we sin, the Holy Spirit is grieved. और जब उसने उस दर्द को, दुख को हमारे पापों के लिए उठाया, He keeps extending help to us. और उसने हमारे लिए हमारी सहायता किया उससे छुटकारा पाने के लिए, Until we get back on track. ताकि हम सही तब तक हम सही रास्ते पे आ सके। So Jesus has already finished the work. यीशु ने अपने उस कार्य को क्रूस पर पूरा किया, And even now it's Jesus who's helping us to follow him. और यीशु मसीह अभी भी हमारी सहायता करता है कि हम उसके पद चिन्हों पर उसके पीछे चल सके। So we see that Jesus is our great intercessor. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा एक अच्छा, एक बड़ा महान मध्यस्थ करने वाला बना। So there are other examples in the Bible who were intercessors. और हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि बहुत से लोग मध्यस्थी उदाहरण देख सकते हैं जिन्होंने मध्यस्थता की। So we'll see the examples of Abraham and Moses in little detail. और हम देखते हैं पुराने नियम में उदाहरण जो मध्यस्थी किया वो है अब्राहम, मूसा और अन्य लोग। So there are many references here in Genesis chapter 18. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में बहुत से उदाहरण जो उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय। So you can read later, but what is mentioned there is Abraham pleaded to God for Sodom and Gomorrah. हम देखते हैं कि अब्राहम ने, बाद में जाकर उन वचनों को पढ़ना, लेकिन वहां पर देखते हैं कि अब्राहम ने लूत के लिए और सदोम के लिए मध्यस्थ बना या मध्यस्थी किया। So Lot was the nephew of Abraham. और लूत अब्राहम का एक रिश्तेदार था। So we see that he chose the plains of Jordan very close to Sodom and Gomorrah. और हम देखते हैं सदम अमोरा के पास यरदन है, उसको उसने चुनाव किया।
Sodom and Gomorrah is a place which was consistently doing evil in the eyes of the Lord. और देखते हैं कि सदोम अमोरा परमेश्वर की दृष्टि में वो देश जो था, दोनों वो सदोम अमोरा पूरे पाप से भरा हुआ था, गंदगी वहां पाई जाती थी। So one day there was a fight between the helpers of Abraham and Lot. एक बार क्या हुआ कि अब्राहम और लूत के जो नौकर लोग थे, उनके साथ आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। So Abraham asked Lot to choose whichever part that he wants to go. और अब्राहम ने लूत से पूछा, तू क्या कौन सा ऐसा जगह चाहता है, उसका चुनाव तू कर ले। And we see that Lot chose the plains of Jordan, very close to Sodom and Gomorrah. और सदोम और अमोरा के नजदीक में जो यर्दन पाया जाता है, उसको उसने चुना। So because he chose that, he actually pitched the tent as far as Sodom, the Bible says. ओके, हम देखते हैं कि लूत ने क्या किया, उस सदोम अमोरा के पास अपने तंबुओं को उसने गाड़ दिया या लगा दिया। So it was, even though Lot chose everything by himself, जब हम देखते हैं कि लूत अपने आप में होकर स्वयं उसने उस स्थान को चुन लिया, the Lord's anger was burning against Sodom and Gomorrah. लेकिन परमेश्वर बहुत ही क्रोधित हुआ, क्योंकि सदोम अमोरा वो पाप से जो भरी थी, उसको नाश करने के लिए। So Abraham knew that Lot and his family lived there. और हम देखते हैं कि लूत और उसका परिवार उस जगह में जाकर रहना शुरू किए। So he prayed to God. हम देखते हैं कि वहां पर अब्राहम ने उनके लिए मध्यस्थ होकर प्रार्थना किया। So he's asking God, Lord, even if there are 50 righteous people, will you still destroy Sodom and Gomorrah? और वहां पर अगर धर्मी कोई व्यक्ति है, तो मैं क्या करूंगा, वो 50 भी हो, तो कोई धर्मी हो वहां पर, लेकिन मैं क्या करूंगा, उस देश को मैं नाश करूंगा। And the Lord is telling, okay, if there are 50, I will not. The conversation goes on and on. और वहां पर देखते हैं कि अब्राहम और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप चल रही है कि उसको नाश करने के बारे में, और अब्राहम कहता है कि नहीं, उसको नाश नहीं करना, क्योंकि धर्मी वहां पर होंगे। So finally he tells, at least if there are 10 people, will you still destroy Sodom and Gomorrah? तो उसने कहा कि ठीक है, 10 अगर व्यक्ति है तो भी क्या करूंगा, उस देश को मैं नाश करूंगा। So the Lord goes away. परमेश्वर वहां से हट गया, चला गया। So we see that in spite of knowing everything, Abraham was willing to intercede for his nephew. और हम देखते हैं कि लूत जो उसका रिश्तेदार था, उसके लिए हमेशा परमेश्वर से मध्यस्थी कर रहा था। So he had the heart of compassion for his. उसके अंदर एक दयालुपन की आत्मा या उसका हृदय था। So similarly, even in our family, if we see someone who's away from the Lord, हम जब अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे परिवार में या दूसरे के करीबी को हम देखते हैं, उनके जीवन के बारे में जब सोचते हैं, तो who's struggling to know the Lord, जो परमेश्वर को पाने के लिए तकलीफ परेशानी उठाते हैं, they may be doing the wrong things again and again. और हम देखते हैं कि वो हमेशा गलती कई प्रकार की वो करते ही जाते रहते हैं। When we intercede for them, जब हम उनके लिए मध्यस्थ बनते हैं या मध्यस्थी करते हैं, the Lord will hear our prayers. हम उनके दुख को देखकर प्रार्थना करते, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, And he will bring them back on track. और उन व्यक्तियों को, उन परिवारों को सही रास्ते पर परमेश्वर लेके आता है। See, Abraham was blessed in every way. और हम देखते हैं कि अब्राहम हर एक क्षेत्र में उसने आशीष को पाया। There was no need for him to go and plead to God for Lot. अब्राहम को कोई जरूरत नहीं था कि लूत के लिए विनती करे, Because he chose his own path. क्योंकि स्वयं उसने अपना रास्ता को चुना। But we should always be concerned about the lost. ओके, हमें क्या करना है, जो खो गए हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसके प्रति हमारे अंदर एक बोझ होना आवश्यक है। We who have tasted the Lord, क्योंकि मैंने और आपने परमेश्वर का स्वाद
यीशु का स्वाद को चखा है। when we have the love and compassion, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के प्रेम और दया को हमारे जीवन के द्वारा, the best thing that we can do for the person is pray for them. और हम एक अच्छा काम दूसरों के लिए कर सकते हैं, वो ये है प्रार्थना। See, some of them might know the Lord, कई बार हो सकता है वो परमेश्वर को जानते भी होंगे, नहीं जानते भी होंगे, but they might be living a miserable life and losing all their blessings because लेकिन- they cannot come close to God. हो सकता है वो दुख तकलीफ में अपने जीवन को समस्या में बिता रहे होंगे, लेकिन वो अपनी आशीष को उसके कारण खो रहे होंगे। So we should keep praying for them. हमें क्या करना है? उनके लिए लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। So when we earnestly seek the Lord for their souls, जब हम दृढ़ता पूर्वक आत्माओं के लिए विनती करते हैं या प्रार्थना करते हैं, we are standing like a protection. तो हम क्या है? सुरक्षा कर्मी के रूप में हम खड़े होते उन व्यक्तियों के लिए। So it's like a hedge of protection around them. We are building a wall of prayer. हम क्या कर रहे हैं? हम सुरक्षा कर्मी के रूप में खड़े हैं और हम प्रार्थना के द्वारा हम क्या करें? उस बाउंड्री को हम बांध रहे या दीवार को खड़ा कर रहे हैं, So we earnestly seek the Lord. ताकि हम ईमानदारी से परमेश्वर से मांग सके। One day they will turn to the Lord, एक समय आएगा, एक दिन आएगा, वो परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। because divine intervention we cannot do, but He can do for us. लेकिन हम तो कर नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर उनके लिए काम कर सकता है। So always we should be mindful of others and always extend a heart to others by praying. हमें प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना के बढ़ोतरी के द्वारा हम दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं, दूसरों की हम मदद कर सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं। I've known of a person मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, who was struggling to come to the Lord for many years. परमेश्वर के पास आने के लिए कई वर्षों तक उसने अपने आप में उस लड़ाई को लड़ा, But his mother was always praying for him, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके लिए प्रार्थना करती थी earnestly seeking the Lord. और बड़े ईमानदारी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में वो परमेश्वर से मांगती थी। But he went into all bad habits in his youth and also later in the adults. और एक जो उसकी जवानी की अवस्था में उसके साथ जब लोगों के साथ वो जीवन व्यतीत कर रहे थे, All the bad habits, उसके जीवन में गलत आदतें आ गई, गलत कार्य को करना शुरू किया। smoking, drinking, and all the bad habits. शराब पीना, सिगरेट पीना और ऐसे गलत गलत आदतें उसके जीवन में आ गई। The mother was earnestly praying for him. लेकिन उसकी माँ बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में होकर वो प्रार्थना कर रही थी। The mother died after few days. कुछ समय के पश्चात उसकी माता का देहांत हो गया। Still the son did not change. आज भी उसका बेटा उसका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। And later the sister, the sibling of the brother began to pray. और उसके बाद उसके जो रिश्तेदार, उसकी जो बहन रिश्तेदार है, वो प्रार्थना करना शुरू की। After many years, कुछ वर्षों के बाद this person changed. उसका जीवन बदल गया। And he was almost 70 years. जब वो 17 साल का था, But the Lord restored most of his years. He was able to live a fruitful life. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक फलवंतदायी जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने उसकी So सहायता किया। from the time he came to the Lord जब से उसने परमेश्वर को जाना, till the end of his life, उसके अंतिम समय तक he lived a very fruitful life. वो बड़े आशीषित फलवंत जीवन उसने व्यतीत किया। This was truly because of the mother's prayers. और ये बात सत्य है, उसकी माता ने उसके लिए प्रार्थना की। So even if one person is there for us to pray for, और कोई एक व्यक्ति ही हमारे लिए काफी है, हमारे जीवन के लिए जब प्रार्थना वो करती है, that is a great blessing we और have. वो मेरे और आपके लिए बड़ा एक आशीषित का कारण बनता है। Then we'll see about Moses as an intercessor. और हम अगला देखते हैं कि मूसा एक मध्यस्थी के रूप में खड़ा है। So we saw how Moses was so close to God, seeking God, and the glory of the Lord was upon him. हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के साथ कितना करीब था और वो परमेश्वर की महिमा वो करने वाला व्यक्ति था। But when the Israelites sinned and God was angry with the Israelites, जब इस्राएल लोग ने पाप किया और परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ,
he wanted to destroy the Israelites. वो इसराइलियों को खत्म करना चाहता था। Moses was always standing in the gap. हमेशा उस लोगों के बीच में, उस खाली स्थान में खड़े होकर उनकी मध्यस्थता करने के लिए मूसा हमेशा तैयार रहता था। Moses is pleading their cause based on the covenant of God. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की उस वाचा को लेकर चलने वाला वो मूसा। So can we read Exodus 32, और हम एक्सोडस 9 to 14? निर्गमन की पुस्तक उसका 14. 9 अध्याय उसका 14 पद, सॉरी 32 चैप्टर 32. निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय 9 से 14 पद। Okay, we'll resume after the break. Thank you. और ब्रेक हो गया, उसके बाद हम देखेंगे।